Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This lecture is being delivered by your teacher in physics, Inamullah Choktai, and today we have to discuss chapter number 17, and today's topic is strain energy in deformed material. Just before starting our topic, I would like to say please like, comment and subscribe, and don't forget to hit bell icon for more videos. You are watching my YouTube channel, Dr. Physics. So students, first of all, we have to discuss the key points that we have to discuss in today's lecture. First of all, we have to define the deformation. This term we have already discussed in the previous lectures. And the next is the definition of the strain energy. There is no doubt basically in the form of the potential energy stored in the body when the work is done on the body. And next we have to discuss the graph between the force and extension. And next we have to calculate the work done by this force and work done in terms of modulus of elasticity. The next we have to discuss the significance of the area method and electrical properties of the solids. Let's start our topic. First of all, we have to define the strain energy. Student, first of all, I would like to recall the term deformation that we have discussed in the previous lectures. What is meant by the deformation? Deformation means change in the shape, length or the volume of the body. पिछले चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर लगती है तो वो फोर्स उस बॉडी की शेप, लेंथ और वॉल्यूम में तब्दीली पैदा करती है और इस तब्दीली को डिफॉर्मेशन कहते हैं. याद रखिएगा, whenever the force is applied on the body, the applied force causes the change in the shape, length or the volume of that object, and this change basically is called deformation. हम लोगों ने डिफॉर्मेशन को यहाँ पे क्यों डिस्कस किया? इसलिए कि जब डिफॉर्मेशन होती है तो डिफॉर्मेशन के नतीजे में बेसिकली एक डिस्टॉर्शन होती है. अब यहाँ पे डिस्टॉर्शन की टर्म आई है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय द डिस्टॉर्शन. व्हाट इज डिस्टॉर्शन? इट इज जस्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम देयर मीन पोजीशन. मीन जब फोर्स लगाई जाती है बॉडी पर तो बॉडी के जो पार्टिकल्स होंगे, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा जो भी है, वो अपनी मीन पोजीशन से हट जाएंगे. अपनी मीन पोजीशन से वो हट जाएंगे तो उनका जो एक डिस्प्लेसमेंट है, उनका डिस्प्लेस होना है अपनी मीन पोजीशन से, ये बेसिकली डिस्टॉर्शन कहलाता है. और बेसिकली जब हम वर्क करते हैं ऑन द बॉडी, मतलब बॉडी पे, और वर्क डन ऑन द बॉडी बेसिकली causes द डिस्टॉर्शन. और डिस्टॉर्शन क्या था? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम्स फ्रॉम देयर मीन पोजीशन. तो ये वर्क डन that is done on the body, this work done appears in the form of that change in the potential energy of that body. तो ये जो वर्क डन है उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर सामने आता है, जिसको हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं. This distortion in the displacement of the atoms of the body appears in the form of the gain of potential energy in the atoms of that body, and this is called strain energy. Strain energy को simple language में, बहुत simple words में हम इसको define कर सकते हैं कि it is the energy stored in the deformed material. It is the energy stored in the deformed material is called strained energy. Next we have to discuss the graph between the force and extension. बच्चों, इस डायग्राम में आपको एक स्ट्रिंग दिखाई गई है और इस स्ट्रिंग अपर एंड में ये एक फिक्स फोर्स के साथ जो है वो इसको टाई किया गया है. ये एक फिक्स फोर्स के साथ जो है वो लगी हुई है और लोअर एंड पे हम इसको वेट लटका के इसमें एक्सटेंशन पैदा कर सकते हैं. मींस जितना वेट बढ़ाते चले जाएंगे इस वायर के अंदर उतना एक्सटेंशन पैदा होता चला जाएगा और इस एक्सटेंशन को आप इस साथ लगे स्केल से मेजर भी कर सकते हैं. इस तरह जब आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी एक्सटेंशन की और फिर फोर्स की, यहाँ पे सपोज मैं इसको फोर्स से रिप्रेजेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डेल एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, जो भी इसमें एक्सटेंशन आएगा, तो फिर मैं एफ और डेल एक्स के दरमियान ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ जो कि हमने प्लॉट करना है.
तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि जब हम वर्क करेंगे, फोर्स लगाएंगे ऑन द बॉडी, मीन्स हम वर्क करेंगे, तो हमारी लगाई गई फोर्स बेसिकली इस बॉडी के अंदर एक एक्सटेंशन पैदा करता है, एक चेंज पैदा करता है। तो ये वर्क डन बेसिकली उस बॉडी में उसकी एनर्जी के तौर पर जमा हो जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स यानी कि जो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने बुक 1 में स्टडी किया था। और वहां पे हमने क्या किया था कि वहां पे एग्जांपल क्या थी, एग्जांपल थी कि हम एक ऑब्जेक्ट को इन द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करवाते हैं, तो टोटल डिस्टेंस को हमने n नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया था। और क्यों डिवाइड किया था? सो एज टू हैव द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द फोर्स फॉर ईच सेगमेंट। तो यहाँ पे भी हम वही कुछ करने वाले हैं, इसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करके फिर हम वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो कंसीडर अ वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड. It is stretched by attaching a weight at the other end. Force causes extension in the wire. A graph can be plotted between the force F and extension L in the wire. And this is the graph that is between the extension on the x-axis and the force ऑन द वाई एक्सिस। अगेन जो मैं बात कर रहा था कि फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, आप देख सकते हैं कि जीरो से लेके ऑनवर्ड हमारी फोर्स मुसलसल बढ़ती है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि दिस इज द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय द वेरिएबल फोर्स। सो विद इन द इलास्टिक लिमिट द एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चूंकि एक्सटेंशन फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है वो इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। As force F touches the wire, it does some amount of the work on the wire. The force F does not remain constant. जो मैं बात कर रहा था वेरिएबल फोर्स F does not remain constant, ये constant नहीं रहती। In the producing the extension, it varies uniformly from 0 to the F. ये मुसलसल बदलती है। It is in such situations the work is calculated by the graphical method. Means कि आप तमाम एक्सटेंशन को n नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स में, आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर भी आ रहे होंगे, स्मॉल सेगमेंट्स में हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे इसी चीज को कि स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद आप की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। सो कैलकुलेशंस फॉर द वर्क डन. Suppose at some stage before the extension L1 is reached. अब ये x एक्सिस पे देखें, del x, L1, L2 एंड द G, ये सब एक्सटेंशंस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। मतलब बढ़ता हुआ एक्सटेंशन आपको दिखाया गया है along the x एक्सिस, del L that is a change in the length आपको दिखाया गया है, और वर्टिकल एक्सिस पे हमें फोर्स दिखाया गया है। अब हमने डिस्कस करना है del x को, और del x बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जो कि del L1 से पहले आया। तभी हमने जो सेंटेंस यूज किया है, सपोज एट सम स्टेज बिफोर द एक्सटेंशन L1, L1 से पहले, L1 से पहले एक पॉइंट है del x, हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं। द फोर्स ऑन द वायर F एंड द वायर एक्सटेंड्स, द फोर्स ऑन द वायर इज F एंड द वायर एक्सटेंड्स बाय अ वेरी स्मॉल amount del x. The extension del x is so small that the force may be assumed to be constant in del x. So the work done is given by work is equal to work is equal to F cross del x. तो यहाँ पे हमने इस स्मॉल सेगमेंट के लिए फोर्स की वैल्यू को ऑलमोस्ट कांस्टेंट कंसीडर किया है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं अभी आपको बता रहा था चैप्टर नंबर 4 में वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। del x is so small, del x is so small that the value of the force for this del x is considered to be constant. तो हम वर्क की वैल्यू f del x की यहाँ पे यूज कर सकते हैं। It is represented by a strip of the shaded area in the graph. मैंने यहाँ पे इसको एक येलो कलर से इस एरिया को दिखाया है, एरिया अंडर द कर्व एक येलो कलर में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और in this way the total extension L can be divided into the very small extensions and the total work done is the sum of all these strips. इसी तरह O से लेके L1 तक जितना भी एक्सटेंशन है, इसको तमाम छोटे छोटे सेगमेंट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक सेगमेंट के लिए इसी तरह एरिया अंडर द कर्व
कैलकुलेट करके फिर इन तमाम एरियाज को जमा करके हम टोटल वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास O, A एंड B, हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है। इसे गौर से देखिएगा, O से लेके A तक, A से लेके ऊपर B तक और फिर वापस आप आ जाएं O तक, ये एक ट्रायंगल बन जाती है। लिहाजा इस एरिया अंडर द कर्व को बाय द फार्मूला एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट किया जा सकता है। मींस इन दिस केस वर्क डन basically is equal to the area of the triangle AOB. सो अगेन अब यहाँ पे आपको वही स्मॉल सेगमेंट्स, ढेर सारे सेगमेंट्स थे जो डिफरेंट कलर्स में दिखाए गए हैं कि हर एक सेगमेंट के लिए हम फोर्स को कांस्टेंट करके हम एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं और बाद में इन तमाम को जमा करके टोटल वर्क डन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगल बनती है OAB, हम उसके हवाले से बात करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और वर्क डन किसके बराबर होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। OA हमारी बेस है, AB हमारी हाइट है। So work done is equal to half L1 क्रॉस F1। इस बेस की जगह हमने L1 लिखा है और इस हाइट की जगह हमने F1 लिखा है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन ऑन द बॉडी दैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी. It is a gain in the potential energy of the molecules due to their displacement from their mean position. So work done in the modulus of elasticity. हम वर्क डन को इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिस्कस कर सकते हैं। वर्क डन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे सपोज ए को हम कहें कि ये क्रॉस सेक्शन है हमारे कंडक्टर का, वायर का, और L इज द टोटल लेंथ। याद रखिएगा ये डेल L नहीं है ना, L1 L2, ये कंप्लीट L आपको दिखाया गया है। तो L जो है वो हमारे पास टोटल लेंथ है ऑफ द वायर। तो बाय डेफिनेशन हम जानते हैं स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो ये हम इलास्टिक रीजन की बात कर रहे हैं। बेसिकली हम रीजन वो बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास वो F1 फोर्स थी। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू F1 बाय A, और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो F1 के लिहाज से जो लेंथ में तब्दीली थी वो L1 है, L1 बाय L आ जाएगा, और E की वैल्यू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन बन जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज अगर इस फार्मूले में ये स्ट्रेस की वैल्यू आपको नजर आ रही है, ये स्ट्रेस की वैल्यू है, और ये स्ट्रेन की वैल्यू है। अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन को अगर हम इस फार्मूले में पुट करें तो F1 बाय A एंड देन डिवाइड बाय L1 बाय L, ये हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस का एक्सप्रेशन बनता है। और अगेन अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें तो हमारे पास F1 की वैल्यू EA L1 बाय L आती है। अब इस F1 की वैल्यू को जो अभी हमने इक्वेशन ड्राइव की थी वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ या एरिया अंडर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाली इक्वेशन, उसमें हम इसको पुट करेंगे। ये डायग्राम जो थी जिसके हवाले से हम अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो वैल्यूज थी बेसिकली F1, ये हमारा F1 है, और F1 के लिहाज से जो चेंज था, एक्सटेंशन था, वो L1 था। सो हमने F1 बाय A और L1 बाय L हमारा टोटल लेंथ है ऑफ द वायर। सो हम इसकी वैल्यूज को, F1 की वैल्यूज को इस इक्वेशन जिसको हमने लास्ट इक्वेशन नंबर 2 कहा था, हाफ L1 इंटू F1, इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू ये बनती है। अब यहाँ L1 से L1 को देखें, L1 इस इक्वेशन में आपको 2 टाइम्स दिखाया गया है, ये L1 है और ये L1 है, इसको L1 स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाएगा EA L1 स्क्वायर बाय L डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है वर्क डन का। सो नेक्स्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ द एरिया मेथड। सबसे पहली बात यह है कि ये एक क्वाइट जनरल वन मेथड है, और इसमें अगर हम एक्सटेंशन को सपोज L1 से L2 तक बढ़ा देते हैं, ये L1 दिखाया गया है इस डायग्राम में, और इस एक्सटेंशन में आप L1 से बढ़ा के इसको L2 अगर बढ़ा देते हैं तो अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD, तो ये हमारे पास जो ग्रीन कलर की एक शक्ल दिखाई गई है
ट्रेपेजियम, हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस वर्क डन बाय दिस ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से हम टोटल वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज वैलिड फॉर द लीनियर एंड द नॉन लीनियर पार्ट्स ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, एंड इफ द एक्सटेंशन अकर्स फ्रॉम O टू G, अगर इस टोटल एक्सटेंशन की बात की जाए O से लेके इस G तक, टोटल एक्सटेंशन की बात की जाए, सॉरी दिस वन इज अ टोटल एक्सटेंशन टू द G, और फिर हमारे पास यहाँ पे टोटल एक्सटेंशन आ जाएगी F1 तक, तो हम इसका OHG एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स रेफर्स देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या मतलब बनता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू कंडक्ट the electric current. Basically this is electrical property. On the basis of the electrical property, solids को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कंडक्टर्स के हवाले से। दे आर हैविंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स and many of them are very good conductors of the heat and electricity. Metals such as the copper, silver, aluminum, etc. These are the examples. And conductivity, their conductivity order is 10⁷ per ohm per meter. Next is the semiconductors. Again इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर्स, और इनका जो ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी है 10⁻6 टू 10⁻4 पर ओहम पर मीटर होता है, और इसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इंसुलेटर्स, दे आर हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. These are the solids having very low electrical conductivity, और इनका ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी 10⁻10 टू 10⁻20 पर ओहम पर मीटर होता है। इंसुलेटर्स की एग्जाम्पल्स में वुड, डायमंड एटसेट्रा, ये इनकी एग्जाम्पल बनती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।